Hello and welcome. Welcome to the sixth learning session of chapter number 1 of Science 2, which is heredity and evolution. So far in this chapter, what all topics have we covered so far? These are the topics we have covered so far. First, we looked at heredity, which is transfer of characteristics from one generation to the next generation. Then we looked at structure of DNA and what are the different types of RNA and what are the different functions of different types of RNA. Then we looked at the process of protein synthesis यानी production, proteins कैसे produce होते हैं. There were three important steps: transcription, translation, and translocation. Then we saw at the theory of evolution how the first living material was just a protoplasm, nucleus और cytoplasm. उसमें से यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स बने, यूनिसेलर में से मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स बन गए और उसमें से इवॉल्व होते होते आज जितना भी बायोडाइवर्सिटी हमें दिखता है हमारे आजू बाजू वो इवॉल्व हुआ है उस फर्स्ट लिविंग मटेरियल में से. Then we looked at evidences यानी proofs. ये जो theory of evolution है वो correct theory है. उसका क्या proof है, क्या evidence है, क्या सबूत है, that we saw in one of the learning sessions. Then in the last learning session we looked at Darwin's theory of natural selection, which says कि only those living organisms which are fit for survival, only they will survive, and the remaining living organisms they are going to perish. यानी गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. ओके, सो जिसमें बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस होते हैं सिर्फ वो लोग सर्वाइव करेंगे जो लोग फिट है जीने के लिए. Then we saw theory of Lamarckism. What does Lamarckism say? It says that there are certain modifications in animals and plants which have only two reasons behind it. Okay, first reason is specific activities. So कोई specific activities है जो living organisms करते हैं उसके वजह से वो modifications आ जाते हैं उनके बॉडी में. सेकेंड रीजन इज लेजीनेस. अगर कोई बॉडी पार्ट यूज नहीं किया, कोई बॉडी ऑर्गन बहुत टाइम के लिए यूज नहीं किया तो वो ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाता है, डीजनरेट होना शुरू हो जाता है. सो Lamarckism says that जो कुछ भी मॉडिफिकेशन आ जाए दे हैपन बिकॉज ऑफ टू रीजंस. फर्स्ट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी, कोई स्पेशल एक्टिविटी कर रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर वो लेजी है, कोई बॉडी पार्ट कोई ऑर्गन यूज नहीं कर रहा है. एंड लास्ट we looked at speciation. What is speciation? It is formation of new species. ये किसके वजह से होता है? There are many reasons. One of the important reason is geographical isolation. कि ऐसे पार्ट में है दुनिया के जो जहां पे वो दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो वहां पे नए स्पीशीज बन सकते हैं. एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि सिर्फ एक स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, बाकी के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. सो अगेन दे आर गोइंग टू फॉर्म सम न्यू स्पीशीज, राइट? So all these topics we have seen so far. Today we are going to look at human evolution. अगर evolution सही है तो human कैसे evolve हुआ, human का क्या origin है, that we are going to look at today. So our objective for the day will be you should be able to explain human evolution by the end of this learning session. And end में हम कुछ end of chapter question and answers discuss करेंगे that you should be able to recall. याद करके बोलना आना चाहिए, लिखने आना चाहिए. So now we can begin. Human evolution. The biodiversity. What is the meaning of biodiversity? It's made up of two words, bio and diversity. Bio means living things, diversity any variety. So living things में जो variety है that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. जितना भी अलग अलग टाइप के ह्यूमन जितने भी अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आजू बाजू है वो सारे के सारे एक सिंपल यूनिसेलर एक सेल का ऑर्गेनिज्म में से इवॉल्व हुआ है. This evolution, in this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given in the next slide. Okay, so ये picture है, this is also given in your textbook. Okay, so here you can see कि कौन से टाइम पे कितने साल पहले कौन से टाइप के एनिमल में से हम इवॉल्व हुए. ओके, तो पहले एंशिएंट एनिमल्स लाइक लीमर्स. ओके, लीमर्स करके एक लीमर्स जैसे, नॉट एग्जैक्टली लीमर बट लीमर जैसे कोई एनिमल था जिसमें से ह्यूमन इज बिलीव टू बी इवॉल्व. तुम देख सकते हो कि धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज हुआ, धीरे धीरे उसका जो जॉ है उसका साइज छोटा हो गया, धीरे धीरे जो बैक बेंड था वो धीरे धीरे स्ट्रेट होने लग गया. पहले वो चारों हाथों से, चारों पैरों से चलता था, पर धीरे धीरे उसके हाथ फ्री होने लग गए. जैसे हाथ फ्री हो गया फिर वो टूल्स यूज करने लग गए, बॉडी के ऊपर जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गया. So slowly what different changes started taking place in humans or human like animals that you can see through this picture. And you can also see कि कौन सा टाइप का evolution कब हुआ. For example, this is some 7 crore years ago, this is some 4 crore years ago.
there's some 50,000 years ago, so on and so forth. Okay, so we are going to see each and every period in detail in today's learning session. Okay, so first, last dinosaurs disappeared approximately 7 crore years ago. 7 crore साल पहले जो लास्ट डायनासोर्स थे वो खत्म हो गए, गायब हो गए अर्थ से. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to modern lemurs. तो ये lemur का photo है. Okay, you must have seen this in some picture or some videos. Okay, so this is modern day lemur. तो इसके जैसा कोई तो एक animal था और इस animal में से monkey-like animals evolve हो गए. कब? Around 7 crore years ago. तो in this learning session slide, जहां पे भी dates है, dates नहीं, जहां पे भी टाइम दिया है 7 करोड़ साल पहले, 4 करोड़ साल पहले, उसको मैंने रेड में डाला है. सो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कैसे हम बहुत पहले से धीरे धीरे एकदम प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं. ओके, एंड जैसे हम प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, पास्ट में से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, हाउ आर द स्मॉल स्मॉल चेंजेस बीइंग टेकन प्लेस इन humans, okay, and in humans evolutions that you have to pay attention to. Next, tail of these monkey-like animals of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago. तो 7 करोड़ साल पहले मंकी जैसे एनिमल्स, मॉडर्न डे लीमर्स जैसे कोई एनिमल्स में से इवॉल्व हो गए, एंड फिर 4 करोड़ साल पहले यानी 3 करोड़ साल लग गए उनकी जो पूछ है वो डिसअपियर होने के लिए, गायब होने के लिए. तो पूछ गायब होगी उन मंकी लाइक एनिमल्स के जो अफ्रीका में थे. डेवलप्ड ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन. उनका डेवलपमेंट हुआ बॉडी का क्योंकि उनका ब्रेन का साइज इंक्रीज हुआ. Their hands were also improved. उनके हाथ भी improve हो गए. Okay, and thus ape-like animals were born. तो ape जैसे animals जो होते हैं वो born होने लग गए. Okay, here you can see some typical monkeys that you can find in India. Meanwhile, these ape-like animals reached South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. तो जो ape-like animals evolve हुए around 3 crore years back, नहीं 3 नहीं 4 crore years back, जो एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हो गए, फिर वो कहां तक पहुंचे? साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया तक पहुंच गए. ओके, और फिर वो किसमें इवॉल्व हो गए? गिबन एंड ओरंगटन. गिबन यहाँ पे है, ओरंगटन यहाँ पे. तो यहाँ पे इन एनिमल्स में वो इवॉल्व हो गए. रिमेनिंग एप लाइक एनिमल, जो लोग यहाँ एशिया तक नहीं आए, वो लोग जो अफ्रीका में ही रह गए, जो अफ्रीका में ही रह गए, वो जो एनिमल्स थे वो किसमें इवॉल्व हो गए? गोरिल्ला में. गोरिल्ला यू कैन सी ओवर हियर. एंड चिंपैंजी में. चिंपैंजी जो यहाँ पे मस्त में एकदम चिल करते हुए बैठा है, उसमें इवॉल्व हो गया, जो अफ्रीका में रह गए एप लाइक एनिमल्स. और ये कब हुआ? अराउंड 2.5 करोड़ इयर्स बैक ये हो गया. ओके, स्लोली वी आर कमिंग टुवर्ड्स द प्रेजेंट. ओके, पहले 7 करोड़ साल पहले, फिर 4 करोड़ साल पहले, अब 2.5 करोड़ इयर्स बैक हम आ गए. Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seem to be occurred in a different way. तो जो 2 करोड़ साल पुरानी स्पीशीज है उसमें से जो एप्स कुछ एप्स इवॉल्व हुए, वो बहुत अलग तरीके से इवॉल्व हुए, डिफरेंट वे में इवॉल्व हुए. दे हैड टू यूज देयर हैंड मोर ऑफन फॉर ईटिंग एंड अदर वर्क. उनको अपने हाथ से ज्यादा खाना खाने मिला और दूसरे काम के लिए भी अपना हाथ यूज करने लग गया. ओके, फॉर एग्जाम्पल मंकीज, दे कैन open a packet of chips by their using their hands. They can open a water bottle using their hands. But can a cow do that? Can a fox do that? Can a dog do that? No, right? वो लोग अपने हाथ से इतना एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं. बट ये जो थे 2 करोड़ साल पुरानी स्पीशीज ऑफ एप्स, उसमें जो एवोल्यूशन आया उसमें वो लोग हाथ को ज्यादा यूज करने लग गए खाना खाने के लिए और दूसरे एक्टिविटीज के लिए. Those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. उनका जो environment है वो ड्राई होने लग गया. ड्राई कैसे हुआ होगा? हीट इंक्रीज हुई होगी, फिर रेनफॉल कम हुआ होगा. तो जब हीट इंक्रीज हो जाता है, रेनफॉल कम हो जाता है, सो फॉरेस्ट खत्म होने लग जाते हैं, राइट? सो एज फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, फॉरेस्ट कम होने लग गए, तो उनको लैंड पे उनको लैंड पे रहना पड़ रहा था. ओके, उन एप्स को. Then pelvic girdle. What is pelvic girdle? So it's a bone in your hips. Okay. तुम most probably when you're watching this video, you've sitting, right? You've sat somewhere. तो जहां पे भी तुम बैठे हो, तो तुम्हारा बॉडी का वेट जहां पे पड़ रहा है वो बेसिकली तुम्हारे पेल्विक ग्रिडल पे बैठा है. उसको हिप बोन भी बोलते हैं. ओके, सो हिप बोन जिसको पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं, सो उनके उस हिप बोन में, पेल्विक ग्रिडल में ऐसा डेवलपमेंट हुआ सच दैट they started to stand in erect posture in grasslands. क्योंकि अब वो फॉरेस्ट में नहीं रह रहे थे, वो ग्रासलैंड में रह रहे थे,
उनका पेल्विक ग्रिडल जो है, हिप बोन है, वो इस तरीके से डेवलप हो गया कि वो सीधा खड़े होने लग गए। ओके, इरेक्ट पोस्चर यानी सीधा, इरेक्ट यानी सीधा। सो ग्रासलैंड में वो सीधा खड़े होने लग गए, and thereby their hands became available for use anytime. See, when you are not standing straight, तुम्हें अपने हाथ भी जमीन पे लगाने पड़ेंगे, राइट? When you are not standing straight, तुम ऐसा टेढ़े खड़े हो, तुम्हारी बैक बेंट है, तो तुम्हें अपने हाथ भी जमीन पे लगाने पड़ेंगे। बट अगर तुम सीधा खड़े होने लग गए तो तुम्हारे जो दो हाथ है वो फ्री हो जाएंगे किसी भी यूज के लिए, किसी भी समय पे, राइट? These first human-like animals with erect posture, which were using their hands, have evolved about 2 crore years back. Okay, जो पहले इंसान जैसे एनिमल्स थे, जो लोग सीधा खड़े होने लग गए, इरेक्ट पोस्चर था, और जो अपने हाथ यूज कर रहे थे, वो यूजिंग देयर हैंड्स, ये कब इवॉल्व हुए? अराउंड 2 crore years बैक. सो पहले 7 crore years बैक, फिर 4 crore years बैक, फिर 2.5 crore years बैक, अब 2 crore years बैक. धीरे धीरे अगेन वी आर कमिंग नियर एंड नियरर टू प्रेजेंट. First record of human-like animal is with us in the form of Ramapithecus. Okay, so it's made up of two words, Rama and Pithecus. Rama का मतलब क्या है तुम्हें लग रहा है? So Rama को सुनकर तुम्हें राम भगवान की याद आई? That's the correct guess. Okay, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में मिला था. जो कोई भी फॉसिल्स मिलते हैं ना, वो जिस एरिया में मिलते हैं उसके ऊपर से उसका नाम रख देते हैं उस फॉसिल का. ओके, सो एक फॉसिल मिला था नॉर्थ इंडिया में, और वो सेम फॉसिल मिला था ईस्ट अफ्रीका में. तो उस फॉसिल का क्या नाम रख दिया? रामापिथस. जो अराउंड उस पर कार्बन डेटिंग किया होगा, राइट? कैसे जब भी फॉर्मल फॉसिल मिलता है उस पर कार्बन डेटिंग करते हैं, और कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चलता है कितना पुराना है. तो पता चला कि ये अराउंड 2 लाख ईयर्स, 2 लाख करोड़ ईयर्स पुराना है, राइट? सो उसको नाम दे दिया रामापिथिकस. ये किसका एग्जांपल है? ये जो 2 करोड़, सॉरी नॉट 2 लाख, ऐसे 2 लाख क्या, इट्स 2 करोड़. ये जो 2 करोड़ साल पहले जो ह्यूमन लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए थे, उसमें से एक था रामापिथिकस. ओके, जो नॉर्थ इंडिया और ईस्ट अफ्रीका में मिला था उसका फॉसिल. Afterwards, this ape grew up in size and became more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. तो ये जो रामापिथिकस मिला, जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल हमें मिला था, इसका साइज इंक्रीज हो गया. इट ग्रू अप इन साइज एंड बिकेम मोर इंटेलिजेंट, और होशियार होने लग गया, और हमें साउथ अफ्रीका का एप मिला, जो कब हुआ था इवॉल्व? अबाउट 40 लाख ईयर्स अगो. तो अब तक 2 करोड़ साल पहले की बात हो रही थी, अब 40 लाख. तो करोड़ से हम लैक्स पे आ गए. सो slowly are moving towards the present. The morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of genus Homo. What is genus Homo? So in animal classification we saw, right? Animals को कैसे classify करते हैं? We have kingdoms, we have phylums, we have subphylums. तो phylums के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनको genus बोलते हैं. Okay, so एक genus है Homo genus, जिसका नाम है Homo, right? सो ये जो जीनस है होमो, उसका जो मेंबर होता है उसकी तरह दिखने लग गए ह्यूमन लाइक एनिमल्स, उसके मॉर्फोलॉजी की वजह से. मॉर्फोलॉजी यानी क्या? उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप. सो मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल्स, इन ह्यूमन जैसे एनिमल्स में जो स्ट्रक्चर था वो किसकी तरह दिखने लग गया? जीनस होमो के मेंबर्स की तरह दिखने लग गया. और ये कब हुआ? अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो. एंड द स्किल्ड ह्यूमंस वर डेवलप्ड. ओके, स्किल्ड ह्यूमंस यानी उनके पास कोई स्पेशल स्किल, राइट? And again, see, from 40 lakh years ago, we have now moved on to 20 lakh years ago, right? About 15 lakh years ago, humans walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of Asian continent. So 15 लाख साल पहले ऐसे ह्यूमन जो सीधे चल सकते थे, इरेक्ट पोस्चर में चल सकते थे, वैसे इवॉल्व हुए. और कहाँ पे हुए होंगे ऐसा हम मानते हैं? चाइना और इंडोनेशिया में. ओके, Evolution of upright man, upright यानी again सीधा. Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered fire. So ये जो सीधा खड़े होने वाला ह्यूमन लाइक एनिमल था, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा था. कितने टाइम के लिए डेवलप हो रहा था? 1 लाख ईयर्स. फॉर 1 लाख ईयर्स दैट ह्यूमन लाइक एनिमल वाज डेवलपिंग इट्स ब्रेन, राइट? एंड उसी समय पे इट ऑल्सो डिस्कवर्ड फायर. फायर क्या चीज होती है, उसको कैसे जलाते हैं, उसके क्या यूजेस है, वो हमें पता चला उसी टाइम पे. ब्रेन ऑफ 50,000 year old man has been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as a member of the class wise man or homo sapien. Okay, so genus homo है,
उस जीनस होमो के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, उसमें से एक ग्रुप था होमोसेपियंस, राइट। और होमोसेपियंस उस ह्यूमन लाइक एनिमल को बोलते हैं जो काफी इंटेलिजेंट था, वाइज मैन था। ओके, और ये कब हुआ? अबाउट 50,000 ईयर अगो। सो 50,000 साल पहले जब तक जितना एवोल्यूशन हुआ था, वैसे जो ह्यूमन लाइक एनिमल्स थे वो इतने होशियार हो चुके थे कि उनको होमोसेपियंस के मेंबर्स बोल सकते थे। होमोसेपियन के मेंबर्स काफी होशियार होते हैं। ओके, सो 50,000 ईयर्स बैक हुआ था। सो नाउ फ्रॉम 1 लाख ईयर्स वी आर मूविंग ऑन टू 1,000 ईयर्स, राइट। पहले करोड़ ईयर्स बैक, फिर लैक्स ऑफ ईयर्स बैक, अब हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक में आ रहे हैं। सो फिर मूविंग अगेन टुवर्ड्स द प्रेजेंट मोर एंड मोर। So here you can also see कि इनका साइज पहले इंक्रीज हुआ, जैसे साइज इंक्रीज हो रहा था 1 लाख साल के लिए, जैसे उनका ब्रेन का साइज भी इंक्रीज हुआ, दे स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, निएंडरथल मैन can be considered as the first example of wise man. Wise man यानी होमो सेपियन, राइट। सो होमो सेपियन का फर्स्ट फॉसिल कौन सा मिला था? निएंडरथल मैन। आई टोल्ड यू, राइट, जैसे ही नया फॉसिल मिलता है उसको एक नाम दे देते हैं बेस्ड ऑन वो किसने ढूंढा था, कहाँ पे ढूंढा था, उस एरिया का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। सो फर्स्ट फॉसिल है, फॉसिल जो मिला जिसको हम होमो सेपियन बोल सकते हैं, दैट इज निएंडरथल मैन। अगेन यू कैन सी कि द फेस लुक्स मोर लाइक अ मंकी, काफी बड़ा जॉ है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो लोग ने फायर यूज करके खाना पकाना शुरू किया, राइट। अगर खाना नहीं पका जाए तो तुम्हें काफी बड़ी जॉ की जरूरत है ताकि तुम उसको बहुत ज्यादा चबा सको, बट वंस यू आर कुकिंग फूड यू नीड नॉट चू इट सो मच, राइट। तो हमारा जॉ का साइज थोड़ा कम होने लग गया, एंड यू कैन ऑल्सो सी लॉट ऑफ बॉडी है ऑल ओवर द बॉडी, राइट। So that was your first Homo sapien Neanderthal man. Next, another fossil, Cro-Magnon. Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterwards this evolution had been faster than earlier. So 50,000 साल पहले क्रो-मैग्नॉन मैन जो था वो इवॉल्व हुआ, और उसके बाद से जो एवोल्यूशन हो गया वो थोड़ा फास्ट हो गया। ओके, द एवोल्यूशन हैड बीन फास्टर देन दी अर्लियर। इसके बाद से क्रो-मैग्नॉन मैन के बाद से जो एवोल्यूशन हुआ वो थोड़ा फास्ट हो गया। About 10,000 years ago, wise men started to practice agriculture. 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर शुरू किया, राइट। एग्रीकल्चर करने से पहले हम क्या करते थे? वी यूज्ड टू जस्ट वॉन्डर इन फॉरेस्ट। हमको हंटर गैदरर्स बोलते थे। हंटर्स क्योंकि कुछ 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 ह्यूमन लाइक एनिमल्स हंटिंग करते थे और दूसरे जानवरों को खा लेते। गैदरर्स यानी जो कुछ भी फ्रूट्स नट्स वगैरह पड़े होते थे उनको उठा के जमा करते थे और फिर उसको खा लेते थे। तो थोड़ा सा खाना हमारा हंटिंग से आता था, थोड़ा सा खाना हमारा गैदरिंग यानी जो कुछ भी फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं जमीन पे उसको उठा के खा लेना। तो उससे एग्रीकल्चर से पहले हम लोग वैसा करते थे, बट फिर बाद में 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर ये टेक्निक सीख ली कि कहीं पे भी सीड्स डालो, उसको पानी दे दो, तो वहां पे एक नया क्रॉप बन जाएगा। तो लोग घूमना बंद कर दिए, एंड दे स्टार्ट सेटलिंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस, और वहीं पे पूरे साल के लिए वो लोग क्रॉप्स ग्रो करने लग गया। इट स्टार्टेड टू रेयर कैटल हर्ड्स यानी डोमेस्टिक एनिमल्स को वो लोग रखते थे हमारे उनके घरों के आजू बाजू, काउस, बफेलोज, गोट्स एक्सेट्रा, एंड एस्टैब्लिश सिटीज, वो लोग शहरों में रहने लग गए। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस। कल्चरल डेवलपमेंट यानी कौन से गॉड्स है, कैसे टाइप के कपड़े पहनते हैं, कैसी भाषा होती थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसको कल्चर बोलते हैं, राइट। सो कल्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने का जो आर्ट है वो इन्वेंट हुआ था अबाउट 5,000 ईयर्स अगो। सो वी वर 10,000 ईयर्स अगो जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ, 5,000 ईयर्स अगो आर्ट ऑफ राइटिंग बिगैन। यानी इसका मतलब क्या है? 5,000 साल पहले के जितना भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास ह्यूमंस एंड ह्यूमन लाइक एनिमल्स के बारे में, वो सब हम फॉसिल से गेस मार रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं फॉसिल्स कैसा है, फॉसिल्स कैसे मिल रहे हैं, और उसमें से हम गेस कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा। क्योंकि जो लिखना है वो तो बस 5,000 साल पहले से शुरू हुआ है, तो 5,000 साल के पहले का अगर हिस्ट्री तुम्हें पता करना होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। अगर लिखा भी होगा तो भी काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज में लिखा था वो बहुत पुराना था, और अभी वो किसी को लैंग्वेज आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियन पिरामिड्स या फिर इजिप्शियन के जो जो टनल्स होते हैं उसमें जो कुछ भी लिखा होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर कि एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं। उसको हमें बहुत मेहनत लगा उसको डिकोड करने के लिए, उस भाषा को समझने के लिए, राइट। सो 5,000 साल पहले आर्ट ऑफ राइटिंग शुरू हो गई, एंड दस द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड। सो 5,000 साल पहले से तुम्हारा हिस्ट्री शुरू होता है। सब्जेक्ट हिस्ट्री बिगिंस एट अराउंड 5,000 ईयर्स हो, कि वहां पे लिखना शुरू कर दिया तो हमें काफी इंफॉर्मेशन पता चलने लग गया कि अच्छा हिस्ट्री में ऐसा सब हुआ होगा।
नेक्स्ट, मॉडर्न साइंसेस इमर्ज्ड अबाउट 400 years ago, 400 साल पहले. सो अभी हम 1000 साल पहले की बात कर रहे थे, हजारों में से अभी हंड्रेड्स पे आ गए, 400 years बैक. सो 400 years बैक देयर वाज गैलीलियो, देयर वाज न्यूटन, देयर वाज केपलर, ये सारे साइंटिस्ट मिलके, एंड मेनी मोर, नॉट जस्ट दीज थ्री, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा हूं, मुझे सिर्फ फिजिसिस्ट के नाम याद आते हैं. बट मेनी अदर साइंटिस्ट दे स्टार्टेड मेकिंग मॉडर्न साइंसेस, नया साइंस बनाने लग गए वो लोग. एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड. इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी फैक्ट्री सेटअप होने लग गए 200 साल पहले. ओके, एंड नाउ we have reached at the stage, and still we are searching the details of roots of human ancestry. अभी भी हम लोग ढूंढ नहीं रहे कि हमारी जो एंसेस्ट्री है, ह्यूमंस कहाँ से आए, ओरिजिन क्या है, वगैरह वगैरह. अभी भी हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है. स्टिल साइंटिस्ट आर वर्किंग वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ से आए और हमारी क्या स्टोरी है. And also there's a very beautiful book called as Homo sapiens. Okay, it's, I think, written by, it's not Homo sapiens, I think it's just Sapiens. So the name of the book is Sapiens, and it is written by the author Yuval Harari. Okay, so it's a very beautiful book. It's a history book. और उस एक बुक में ह्यूमंस का पूरा हिस्ट्री लिखा है. ह्यूमंस का जितना भी हिस्ट्री है उस पूरे एक बुक में लिखा है. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग book to read. So if you are interested in हिस्ट्री, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, हम कहाँ से आए हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, then I highly recommend you try to read that book, Sapiens by Yuval Harari. Okay, and one of the interesting things they said, I mean the author says in this book, in this book is कि ह्यूमंस के एक्चुअली बहुत सारे स्पीशीज थे. फॉर एग्जांपल डॉग्स के भी बहुत सारे स्पीशीज होते हैं ना. जर्मन शेफर्ड होता है, गोल्डन रिट्रीवर होता है, बुल डॉग होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो डॉग्स के काफी अलग अलग स्पीशीज होते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर जस्ट डॉग्स. ह्यूमंस में अलग अलग स्पीशीज क्यों नहीं दिखते हमें? ह्यूमंस में सिर्फ एक ही स्पीशीज दिखता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट बुक, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर मेनी स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस. काफी अलग अलग स्पीशीज थे ह्यूमंस के भी. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर आज हमें बाकी के स्पीशीज क्यों नहीं दिखता, हमें सिर्फ एक स्पीशीज क्यों दिखता है? सो द आंसर ही हिंट्स एट अस, शायद एक ह्यूमन स्पीशीज ने बाकी सारे ह्यूमन स्पीशीज का मर्डर कर दिया, उनको खत्म कर दिया, लड़ाई लड़के, बैटल करके, वॉर्स फाइट करके. सो दैट इज वन ऑफ द थियरीज कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग आज सिर्फ एक ही स्पीशीज बचे क्योंकि हम लोग ने बाकी सारे स्पीशीज को मार दिया. ओके, इट्स सो इंटरेस्टिंग टू नो, राइट, कि हमारे पास्ट कैसा था, हमारा पास्ट कैसा था, और हम कहाँ से आए हैं, हमारी स्टोरी क्या है. दैट्स व्हाई आई लव हिस्ट्री, एंड history is a fascinating subject because of this. आज का जो कुछ भी learning session था, it seemed more like a history lesson and less like a science lesson. But history itself is very interesting. Okay, knowing about the past, what was their stories, कैसे चीजें develop हुई, कैसे चीजें सही हो गई, कैसे चीजें गलत हो गई, it's very interesting. Okay, so I highly recommend the book Sapiens by Yuval Harari. Okay. So whatever we discussed, whatever I explained, all of that has been given in this one particular table. Okay, so एक टेबल पढ़ के तुम्हें सब कुछ समझ जाएगा. यहाँ पे पीरियड दिया कितने साल पहले, यहाँ पे इवेंट दिया क्या क्या हुआ था, और कौन से मैन के फॉसिल्स मिले थे, उनका क्या क्या नाम दिया था. तो ये भी यहाँ पे राइट साइड में है. ओके, सो जस्ट कॉपी दिस टेबल इन योर नोटबुक, एंड इफ यू रीड दिस एंटायर टेबल वंस, तुम्हें पूरा का पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन एक टेबल में समझ जाएगा. Okay, so make sure you're copying this, and try to even memorize this. If you memorize it, it will be better. Okay, so that is it about human evolution. Now let us begin with our end of chapter questions. So in the last learning session, we had looked at three short notes. We are going to now continue the same question. First two रह गए थे, Lamarckism and Darwin's theory of natural selection. Both of these topics we have seen in our last learning session, right? So let us see उनके short notes कैसे लिखेंगे. So first Lamarckism. So Lamarckism का पहले एक लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन कर लो. ओके, व्हाट इज Lamarckism? इज अ थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. जो भी कुछ भी कैरेक्टर्स एक्वायर करते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो इनहेरिट कैसे होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कैसे होते हैं, दैट इज Lamarckism. ओके, सो Lamarckism इज द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस of acquired characters from one generation to another, given by Jean Baptiste Lamarck. Okay, so first line में introduction दे दो, second line में और थोड़ा explain करो. It states that morphological changes, any structural changes occurring in living organisms are responsible for evolution. जो कुछ भी structure में change होता है living organisms के में, उसके वजह से evolution होता है. This concept was based on the principle of use and disuse of organs. कौन से principle पे based है? Use and disuse. कोई ऑर्गन को तुम बहुत बार यूज करोगे तो चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, कोई भी ऑर्गन को तुम बिल्कुल यूज नहीं करोगे
तो वीक हो जाएगा और वो डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में आकर ग्रेजुअली, जो स्ट्रक्चर में चेंजेस है वो धीरे धीरे आ सकते हैं, आइदर ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कोई तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज करे उसकी वजह से वो चेंजेस आ सकते हैं उस ऑर्गन में, या फिर लेजीनेस क्योंकि वो ऑर्गन को यूज नहीं करे उसकी वजह से हो सकता है इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सो पहले 3 पॉइंट्स में लमार्किज्म को एक्सप्लेन कर दिया, नाउ गिव एग्जांपल्स। सो हियर are all the examples of Lamarckism. Okay, so first, browsing on leaves of tall plants caused the neck of giraffe to become long, क्योंकि जिराफ बार बार लंबे प्लांट्स के जो लीव्स है उसको ढूंढने की कोशिश करता था, उसको ब्राउज करता था, इसलिए उसका जो नेक है वो लंबा हो गया। frequent hammering of frequent hammering movements cause the shoulders of iron smith to become strong। जो कोई भी लोखंड का काम करते हैं वो लोग, उनको बार बार लोखंड पे हथौड़ा मारना पड़ता है, उसकी वजह से उनके शोल्डर्स स्ट्रांग हो जाते हैं। इनएक्टिविटी कॉस्ट वीकनिंग द इनएक्टिविटी कॉस्ट वीकनिंग ऑफ द वर्ड्स, I'm going to read that one more time. Inactivity caused weakening of the wings of birds like emu, right? emu और ऑस्ट्रिच जैसे बर्ड्स हैं, उनके विंग्स काफी वीक होते हैं। वो वीक क्यों हो गए? क्योंकि वो बहुत टाइम के लिए यूज नहीं किया उन्होंने। Legs of swans and ducks have become useful for swimming due to living in water. Swans और ducks बहुत टाइम पानी में स्पेंड करते थे, तो उनके पैर अभी स्विमिंग के लिए यूजफुल होने लग गया। Due to burrowing habits, snakes have lost their legs, etc. Right? क्योंकि वो लोग हमेशा गड्ढा खोदते थे स्नेक्स, इसलिए उनके पैर गायब हो गए। So these are examples of Lamarckism. Okay. Next short note: Darwin's theory of natural selection. So Darwin's theory of natural selection is based on the concept, which concept? Survival of the fittest. तो fittest living organism होगा वो survive करेगा। Organisms can reproduce prolifically reproduce करना, यानी ऐसे reproduce करना कि जितने ज्यादा नए organisms बन सके उतने बनने चाहिए, उस तरीके से organisms reproduce करने वाले हैं। Under limited resources, organisms compete with each other. Resources limited होते हैं, resources मतलब sunlight हो गया, पानी हो गया, खाना हो गया, all these are resources, right? तो अगर resources limited है, सबको equal sunlight नहीं मिल सकता, सबको equal पानी नहीं मिल सकता, तो organisms में competition होने वाला है। There's going to be competition between different organisms in a life-threatening manner for their survival. और competition survival के लिए होगा, अगर तुम competition में हार गए तो तुम मर जाओगे, वैसा वाला competition, right? आई गिवन यू एग्जांपल्स, राइट? कि अगर कोई प्लांट टॉल हो गया तो टॉल होने की वजह से उसको ज्यादा सनलाइट मिलेगा, क्योंकि वो टॉल हो गया, नीचे जो कम हाइट वाले प्लांट्स उनको सनलाइट अच्छे से नहीं मिलेगा, तो वो लोग पेरिश हो जाएंगे, वो लोग गायब हो जाएंगे, वो लोग मर जाएंगे, और जो टॉल प्लांट है वो सर्वाइव करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसके रिप्रोडक्शन के बाद जो नए प्लांट्स आएंगे वो भी टॉल ही आएंगे, राइट? दैट्स वन एग्जांपल। According to this theory, only those organisms survive which show modifications for winning that competition. ये जो सर्वाइवल का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में जो हेल्प करने वाले मॉडिफिकेशंस है, टॉल होना, फास्ट होना, ज्यादा डीप रूट्स बना पाना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होना, ज्यादा स्पीड होना, ऐसे मॉडिफिकेशन जो कंपटीशन में जिता सकते हैं वैसे ही सर्वाइव होते हैं, बाकी मॉडिफिकेशन सर्वाइव नहीं होते हैं। The selected organisms then give rise to new species with their specific set of characters. फिर धीरे धीरे जो कैरेक्टर्स है, मॉडिफिकेशंस ऐड होते जाते, कैरेक्टर्स चेंज होते जाते, और धीरे धीरे वो नया स्पीशीज बन जाता है, ओके, जिनमें स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। So that's your Darwin's theory of natural selection. So that is it. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you explain me human evolution? Starting कहाँ से हुआ था और end कहाँ पे हुआ? वो अगर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, then you have achieved today's first learning objective. Can you recall end of chapter questions and answers? आज जो लास्ट 2 शॉर्ट नोट्स हमने देखे हैं उसके आंसर्स तुम बोल सकते हो कि आंसर्स बिना देखे लिख सकते हो क्या? If yes, then you have accomplished today's second learning objective. Okay, so that's it for this learning. That's it for this learning objective. I hope you found it interesting, especially the human evolution part. I think it was more on the side or on the lines of history, which I love as a subject. I hope you also found it interesting कि किसी भी species का story क्या है, किसी भी kingdom का story क्या है, किसी भी country का story क्या है. It's very interesting. I hope you also find those things interesting when you start reading a little more about it. So that's it for this learning session. I hope you understood everything, and we'll see you in the next one. Till then, bye and